हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ चार्ज। सो स्टार्ट करते हैं। चार्ज चार्ज स्टार्ट करने से पहले कैन यू टेल मी व्हाट इज द मास? इफ आई आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ मास, so what is the mass? If I ask you what is the mass, you will tell me a definition that quantity of matter containing in a body. Quantity of matter containing in a body is called mass. So if I told you this is not a proper definition, this is a class 8 definition. So what is the proper definition? So mass means property of a body due to which it experiences, or property of a body due to which gravitational force acts. तो अगर मुझे मास की डेफिनेशन, मास को डिफाइन करना है, तो मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स. Gravitational force, let's suppose if this body having the n1 mass, this body having the n2 mass, and the distance between center to center distance between two bodies are r, then the force of gravitation will be g m1 n2 upon r square. अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या ग्रेविटेशन की वजह से मास आता है, ग्रेविटेशन की वजह से मास आता है, या मास की वजह से ग्रेविटेशन आता है? Are you understand my question? My question is, ग्रेविटेशन की वजह से मास आता है या मास की वजह से ग्रेविटेशन आता है? तो ये हम समझ सकते हैं सिंपल एग्जांपल से. लेट्स सपोज सिमिलर हमारे पास दो बॉडीज हैं, वन हैविंग द मास m1, अनदर हैविंग द मास m2. अगर मैं इसका m2 का मास 0 कर देता हूँ, इसका मास, लेट्स सपोज सेकंड बॉडी हैविंग द 0 मास, इट इज अ massless body. So what will be the formula? Force equal to g n1 into 0 upon r square. So what is the gravitational force? It is a 0. That means mass is responsible for gravitational force. Gravitational force mass की वजह से आता है. So mass की वजह से आता है, या mass gravitation force की वजह से mass नहीं आता है, तो mass is an intrinsic property. So अगर मुझे चार्ज को डिफाइन करना है, if I need to define a charge, so charge is a intrinsic property of a substance. Intrinsic property of a substance due to which it experiences electric and magnetic effects. What is the electric and magnetic effect? Electric and magnetic effect means it experiences the attraction and repulsion, or its electric effect means electric field. I am talking about the electric field. Magnetic effect means I am talking about the magnetic field. Now this is the definition. What is the SI unit of charge? SI unit is charge is measured in coulombs. So this is the SI unit. If I talk about the CGS unit, this is the state coulombs. State coulombs. Now tell me what is the charge? Charge स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? तो चार्ज, अगर 2 कूलम का चार्ज यहाँ पे है, तो तुम कैसे भी घूमो इसको, यहाँ ले जाओ, ईस्ट में ले जाओ, वेस्ट में ले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, चार्ज हमेशा 2 कूलम भी रहेगा. तो चार्ज कैसा है? चार्ज है स्केलर क्वांटिटी. चार्ज स्केलर क्वांटिटी. Another biggest unit of charge is also there. It's called Faraday. Faraday means 1 Faraday equal to 96 coulomb. It
It is called the big unit or biggest unit of charge. अब this is the brief introduction of charge. अब चार्ज आता कैसे किसी बॉडी पर, चार्ज कैसे हम कहते हैं कि चार्ज, या फिर हम बात करेंगे चार्ज का टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है। तो चार्ज दो तरीके का चार्ज हो सकता है। चार्ज का टाइप क्या हो सकता है, चार्ज दो तरीके का हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो सकता है एंड नेगेटिव चार्ज हो सकता है। आप कोई पूछ सकता है कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। वन हैविंग अनदर प्रॉपर्टीज and the another having the just opposite property, so we give it negative charge, another one is positive charge. ऐसा नहीं एक नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिव कर रहा है, नहीं, बस प्रॉपर्टी का डिफरेंस है कि नेगेटिव है तो इसकी प्रॉपर्टी इससे जस्ट अपोजिट है, इसलिए हमने इसको मैथमेटिकली नेगेटिव साइन दे रखा है कि ये नेगेटिव चार्ज है। अब चार्ज ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता कैसे, तो एग्जांपल से हम एक समझते हैं। अगर हमारे पास एक ही बॉडी एज यू नो कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर एक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पे 2D में हम ऐसे ही दिखा सकते हैं कि ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, अदरवाइज कुछ ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली हर चीज, हर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर हम मान के चलते नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और पूछोगे कि सर व्हाट अबाउट द न्यूट्रॉन, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज, या कह सकते हैं नो चार्ज। और अनदर वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम ऐसा मान के चलते हैं कि पूरा एटम का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस पर। ओके, और वन इंपॉर्टेंट थिंग इज चार्ज के मूव करने में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करने में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। अब अगर यहाँ पे मेरे एग्जांपल से समझें कि चार्ज आता कैसे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5 है और प्रोटॉन्स जो हैं वो 5 है। यहाँ पे भी अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं, प्रोटॉन्स जो हैं 2, तो इलेक्ट्रिकली कैसे हैं, क्या न्यूट्रल है, तो हाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रिकली ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता और इस बॉडी में डाल देता, ओके, देयर इज अ वेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करने का। अब हम वो आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ से निकाला, इसमें डाल दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, तो यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स जैसा कि मैंने यहाँ बताया प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे 5। प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन्स को होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा होता है नेगेटिव चार्ज। ये 4 बचे हैं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव के 5 बचे हैं, किसका चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन्स का ज्यादा है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2 थे, प्रोटॉन्स 2 थे, अब न्यू कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 + 1 दैट इज 3 और प्रोटॉन्स हैं 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया मतलब इसमें कैसा हो गया है, ये बॉडी कैसे हुई, नेगेटिवली चार्ज हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है बॉडी को, ये पॉजिटिव चार्ज बनाता है, बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देता है। और अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज।
अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे उतने उसके पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। किसी बॉडी पे अगर एक्वायर कर रही है, किसी बॉडी पे गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होता है। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि एडिटिव इन नेचर है चार्ज? एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर का मतलब है अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, मैं बोलूं कि QA चार्ज है, ये है 5 कूलम्स, और ये B चार्ज है, QB चार्ज है, इसकी वैल्यू है -3 कूलम्स। अब मुझे चाहिए पूरे सिस्टम का चार्ज, नेट चार्ज क्या है? तो अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं और नेट चार्ज निकालूं तो हो जाएगा QA प्लस QB। दैट मींस चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज ऐड होते हैं एक दूसरे में, ऐड होते हैं साइन। तो 5 कूलम प्लस -3 कूलम, what is the total charge? It is 2 coulombs of charge. So this is the property, it's called charges are additive in nature. Second property is charge follows the scalar law of addition. Charge follows the scalar law addition. Charge follows the scalar law of addition. For example, let's suppose I have in a body is having the charge 10 coulomb. Okay, B having charge -2 coulomb. Okay. So if they undergo any process, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ, मैं नहीं पता, कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ, यहाँ पे बॉडी में A having 6 coulomb, B having -1 coulomb. So can you tell me third comes C? So what is the charge? So यहाँ another property is charge is always remain conserved. For any system, charge is always conserved. If I find here the total charge, what is the total charge? 10 plus -2, that is 8. 8 coulombs will be the charge. Here, can you tell me how to find? A plus B plus C, it should be 8 coulomb. A is 6, B is -1, C should be what? Can you find out the value of C? Yes, that is the 5. 6 minus 1 is 5, and C equal to 8 minus 5, that is 3 coulomb. So the value of C is 3 coulomb. Charge remain conserved for the whole system, not from the any internal body. A body is there, B body is there, C body, no. Charge is conserved for the whole system. Whole system charge remain conserved means charge remain constant.